Hello everyone. So in the last class we completed rectifiers. Now today we'll start with the filters. Now what are filters? For this you should know that as we have already discussed that the output of a rectifier contains DC component as well as an AC component. So the presence of this AC component is most undesirable. ठीक है, because we want a steady DC output. So these fluctuations which are present in the output of a rectifier or the AC component that is present in the output of a rectifier, this is undesirable and therefore it must be removed from the rectifier output. So to remove or decrease this unwanted AC component in the output of a rectifier, we need a filter. Okay, this is achieved by a circuit which is called filter. So filter circuit हमारा होता क्या है? It may be defined as a circuit which removes or minimizes the unwanted AC component of the rectifier output and allows only the DC component to reach the load. ठीक है, it is defined as a circuit which removes or minimizes the unwanted AC component of the rectifier output and allows only the DC component to reach the load. और usually जो हमारा filter circuit होता है, it consists of passive circuit elements. Passive circuit elements कौन से होते हैं? The inductors, capacitors, resistors and their combinations. तो filter जो है इन सब से मिलकर बनता है और हम फिल्टर्स में कैपेसिटर, रेजिस्टर इन सबको क्यों यूज करते हैं? जो फिल्टरिंग एक्शन है फिल्टर का, इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर. कैपेसिटर की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट इट अलाउज एसी टू पास थ्रू बट डज नॉट अलाउ डीसी टू पास. ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो हमारा इंडक्टर है, inductor opposes AC but allows DC to pass through it. तो ये इंडक्टर और कैपेसिटर की ये जो यूनिक प्रॉपर्टी है, इसका हम यूज कर सकते हैं टू मेक अ फिल्टर सर्किट. ठीक है, सो द सुटेबल नेटवर्क ऑफ LNC can effectively remove the unwanted AC component from the rectifier output, allowing the DC component only to reach the load. Okay, so this is the basic introduction of filter. What is a filter, why do we need filter and what is filter made up of? ठीक है, और why we use inductor और capacitor in a filter, ये already मैं explain कर चुकी हूँ that why a capacitor allows AC but blocks DC and why inductor allows DC but blocks AC. ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इन द रेक्टिफायर्स एज डिस्क्राइब्ड वेरिएशंस और रिपल्स एग्जिस्ट इन द आउटपुट and thus the rectifier may not be suitable for use as DC supply in various electronic circuits. rectifier जो है उसने AC को DC में convert तो कर दिया, ठीक है, रेक्टिफायर ने AC को DC में कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन जो हमारे पास DC आउटपुट आया वो प्योर DC आउटपुट नहीं आया, या हम ये भी नहीं कह सकते कि उसमें बहुत ज्यादा DC कंपोनेंट है, उसमें AC कंपोनेंट भी बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. तो हमारा जो रेक्टिफायर से जो हमें वोल्टेज आउटपुट मिला उसको हम यूज नहीं कर सकते टू मेक अ पावर सप्लाई और अ DC सप्लाई. तो ये जो आउटपुट है इसे हमें और स्मूथ करना पड़ेगा. ये जो आउटपुट है इसकी हमें जो वोल्टेज है उसको थोड़ा और स्टडी करना पड़ेगा. जो इसमें रिपल्स या पल्सेशंस प्रेजेंट है, जो AC कंपोनेंट प्रेजेंट है उसको रिमूव करना होगा. सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ फिल्टर्स. ठीक है, और फिल्टर्स में मोस्टली जो है हम फिल्टर्स को किससे कनेक्ट करते हैं? आउटपुट ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर. यूजुअली वी यूज फुल वेव रेक्टिफायर्स. तो क्या होता है, हमारे पास एक फुल वेव रेक्टिफायर है, वहां से हमारे पास आउटपुट आया, फिर अब हमने उसको एक फिल्टर से कनेक्ट किया और फिर उसको हमने लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया. सो यू कैन से दैट जो हमारा फिल्टर है दैट इज कनेक्टेड
in series between the diode or the full wave rectifier and the load resistance. ठीक है, तो जो हम इंडक्टर फिल्टर की अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, इंडक्टर फिल्टर में जो इंडक्टर है हमारा दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज with the output of the full wave rectifier, or you can say that this is connected in series with the diode of the full wave rectifier, and this inductor filter is then connected to the load resistance in series. ठीक है, और अगर हम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं तो कैपेसिटर जो होता है दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल with the diode of the full wave rectifier. कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड होता है, इसलिए हम उसको शंट कैपेसिटर भी कहते हैं, और जो हमारा इंडक्टर है वो सीरीज में कनेक्ट होता है. क्यों कनेक्ट होता है कैपेसिटर पैरेलल में और इंडक्टर सीरीज में? ये इसी वजह से, ये जो इनकी यूनिक प्रॉपर्टी है कि जो हमारा इंडक्टर है वो डीसी को एज इट इज पास ऑन होने देता है, एसी को ब्लॉक कर देता है, इसलिए हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं. और जो कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास होने देता है, इसलिए हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. और ये इसका क्या फायदा होता है सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करने का, ये तुम लोगों को समझ में आ जाएगा जब हम सबको पढ़ेंगे वन बाय वन. So here we have to study different types of filters. We have to study inductor filter, then we have to study the shunt capacitor filter, then we'll study L-type filter, which is also known as choke input filter, then we'll study the pi filter, then we'll study the RC filter circuit. So we have to study different types of filter circuit. So the first circuit that we'll start with the today is the inductor filter. Now name से ही पता चल रहा है what will be the component that we are using in this filter. That component is the inductor. और यहाँ पे जो हमारा इंडक्टर है वो अपनी बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करेगा, दैट इट अलाउज डीसी एंड ब्लॉक्स एसी. देखो हमारे पास ये इन्होंने यहाँ हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया है विद इंडक्टर फिल्टर. सर्किट किस तरीके से होता है यहाँ पे देखो, वन ऑफ द मेथड्स फॉर फिल्टरिंग आउट द पल्सेशंस इज टू यूज एन इंडक्टर कॉइल और अ चोक इन सीरीज विद द लोड ऑफ द रेक्टिफायर. ठीक है, द यूज ऑफ इंडक्टर फिल्टर इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज शोन इन द फिगर. ना इसका ना एक सेकेंड, मैं एक चीज और दिखाना चाहती हूँ तुम लोगों को. ये देखो, यूजुअली जो हम कनेक्ट करते हैं फिल्टर को हम इस तरीके से कह सकते हैं, वन सेकेंड, ये कि हमारा सप्लाई है फ्रॉम द रेक्टिफायर, रेक्टिफायर से हमारे पास आउटपुट आया, उसको फिर हमने सीरीज में कनेक्ट किया इंडक्टर के, फिर इंडक्टर को हमने इन फर्दर सीरीज में कनेक्ट किया विद द लोड रेजिस्टेंस RL. ठीक है, सो जो हमारी सप्लाई होती है या जो रेक्टिफायर आउटपुट होता है, अगर हम इंडक्टर यूज कर रहे हैं, सो दैट आउटपुट इज connected in series with the inductor which is then connected in series with the load resistance RL. और अगर हम सपोज यहाँ पर इंडक्टर की जगह कैपेसिटर यूज कर रहे होते तो हम जो कैपेसिटर है उसको पैरेलल में कनेक्ट करते, उसको सीरीज में कनेक्ट नहीं करते, वो तुम देखोगे. ठीक है, तो ये है हमारा इस तरीके का सर्किट डायग्राम होता है फॉर इंडक्टर फिल्टर. एग्जाम में जो है तुम ये वाला डायग्राम जो है वो भी बना सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, वो बनाओ. या ये वाला डायग्राम जो है ये इतना एप्ट नहीं है, ये इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कैसे दे रखा है कि यहाँ डायोड है, उसको RL से कनेक्ट किया, उसको L से, तो ये इतना अप्रोप्रिएट जो है सर्किट डायग्राम नहीं है. तो जो स्क्रीन मैंने जस्ट अभी शेयर करी थी, आई वुड सजेस्ट एग्जाम में जब तुम लोग एक्सप्लेन करोगे इंडक्टर फिल्टर तो वो वाला सर्किट डायग्राम बनाना इंस्टेड ऑफ दिस डायग्राम. ठीक है, इसको सिर्फ इतना समझो दैट क्या होता है हमारे पास. सबसे पहले पावर सप्लाई में वी हैव अ रेक्टिफायर. ठीक है, रेक्टिफायर में हमने इनपुट जो है सप्लाई किया, देन वी गेट अ आउटपुट. फिर वो जो रेक्टिफायर आउटपुट है उसको फिर हमने फिल्टर से कनेक्ट किया. तो अगर हम इंडक्टर फिल्टर यूज कर रहे हैं विच इज कंसिस्टिंग ऑफ इंडक्टर ओनली, और यू कैन से इंडक्टर कॉइल और अ चोक, फिर हम जो हमारा रेक्टिफायर आउटपुट है, नाउ इट इज एक्टिंग एज अ इनपुट फॉर दिस इंडक्टर फिल्टर. तो इंडक्टर फिल्टर जो है या जो इंडक्टर है हमारा, वहां पर हमने जो है सप्लाई जो है हमारी रेक्टिफायर आउटपुट की वो सप्लाई करी.
So the rectifier output will become the input for this inductor filter. तो वो हमारी जो सप्लाई है that is then connected with the inductor and that is then connected in series with the load resistance RL. I hope ये सबको क्लियर है. मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ. ये जो है तुम्हारी जो है सर्किट डायग्राम है जो आई वुड प्रेफर एग्जाम में बनाने के लिए. जो रेक्टिफायर सप्लाई है, नाउ इट इज एक्टिंग एज अ इनपुट for this filter circuit. Now this input is connected to the inductor which is then connected in series to the load resistance RL. ठीक है, अब ये हमारा सर्किट है. अब हमें ये देखना है कि ये सर्किट जो है किस तरीके से हमारी हेल्प करता है टू रिमूव और टू मिनिमाइज द AC component in the rectifier output. Inductor क्या है? It offers a very small resistance to the flow of DC while it offers a high impedance. कितनी resistance offer करता है inductor? ओमेगा L. So it offers a high impedance to the flow of AC. XL जो है हमारा that is equal to ओमेगा L. ठीक है, DC के लिए ओमेगा 0 होता है. तो इंडक्टर जो है it offers zero resistance to DC or zero impedance to DC or very small resistance to DC but offers a very high impedance to the flow of AC. तो AC component जो है rectifier voltage का it is largely reduced by the inductor while DC passes through it without any appreciable resistance. ठीक है, इस तरीके से जो है हम इसका एक एक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं. फिर ये जो फिल्टरिंग एक्शन है इंडक्टर का, इसको हम आगे इन डिटेल जो है अनदर एस्पेक्ट से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. सबसे सिंपलेस्ट वे एक्सप्लेन करने का क्या है इसका, मैं यहाँ से समझाती हूँ. देखो, ये हमारी सप्लाई है, ये हमारी सप्लाई है. ठीक है, यहाँ से हमारे पास आउटपुट आया जो अब इनपुट है फिल्टर सर्किट का. आउटपुट हमारा कितना होगा? अगर हमारा ये हाफ वेव रेक्टिफायर है या फुल वेव रेक्टिफायर ले लो, फुल वेव रेक्टिफायर है तो आउटपुट हमारा होगा 1 सेकेंड. आउटपुट हमारा इस तरीके से होगा. अब ये हमारा इनपुट है फिल्टर सर्किट का. अब क्या है इसमें ये जो वेरिएशंस है, दीज आर बेसिकली द पल्सेशंस. ठीक है, अब जब हम इसको पास करेंगे थ्रू द इंडक्टर तो इस पल्सेशन में जो AC कंपोनेंट है, जो पल्सेशंस है, जो फ्लक्चुएशंस है इसमें, वो जो है उसको इंडक्टर जाने नहीं देगा क्योंकि इंडक्टर जो है इट ब्लॉक्स AC. ठीक है, इट ऑफर्स हाई इंपेडेंस टू AC. लेकिन जो DC कंपोनेंट है, यहाँ इस वेव के अंदर जो DC कंपोनेंट प्रेजेंट है, इंडक्टर जो है उसको पास ऑन होने देगा. तो यहाँ पे जो हमारे पास इंडक्टर से पास होके जो हमारे पास जो करंट आया या वोल्टेज आई वो हमारी DC होगी और यू कैन से मैक्सिमम उसमें DC कंपोनेंट प्रेजेंट होगा. मोस्ट ऑफ द AC कंपोनेंट जो है दैट विल बी ब्लॉक्ड बाय द इंडक्टर. ओनली some of the small part of the AC component will be able to cross and all the DC component will cross the inductor since inductor offers zero or you can say very small resistance to DC. तो अब हम जिस RL के across, इस लोड रेजिस्टर के across जब हम वोल्टेज मेजर करेंगे, जो आउटपुट वोल्टेज हम मेजर करेंगे उसमें जो हमारे पास मैक्सिमम पार्ट प्रेजेंट है वो हमारा जो पार्ट होगा, 1 सेकेंड, उसमें जो हम लेट इट सेम, उसमें जो हमारा मैक्सिमम पार्ट होगा वो DC होगा. ठीक है, उसमें जो हमारा मैक्सिमम पार्ट होगा वो DC होगा और बहुत स्मॉल उसमें हमारा AC पार्ट प्रेजेंट होगा. बहुत स्मॉल उसमें हमारा AC पार्ट प्रेजेंट होगा. आई होप ये सबको क्लियर है. दिस इज हाउ इंडक्टर फिल्टर वर्क्स. मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. हमारा जो सप्लाई था रेक्टिफायर से उसको हमने इंडक्टर से पास किया. इंडक्टर ने क्या किया? मैक्सिमम AC कंपोनेंट को ब्लॉक किया. फिर भी
कुछ एसी कंपोनेंट जो है वो पास ऑन हो जाता है, वो मैनेज कर लेता है अपने आप को पास ऑन करने में, एंड ऑल द डीसी कंपोनेंट विल बी अलाउड टू पास थ्रू द इंडक्टर। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इस इंडक्टर के साथ सीरीज में, उसके अक्रॉस अब हम आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट जो है वो मेजर करेंगे। और हम क्या देखेंगे, जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है उसमें हमारे पास जो पल्सेशंस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी, और जो पल्सेशंस हैं दैट विल बी क्लोज टू द एवरेज वैल्यू। पल्सेशंस जो है वो क्लोज हो जाएंगी एवरेज वैल्यू के। किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो वेव फॉर्म बना रखी है नीचे यहाँ देखो, ये है विदाउट फिल्टर, ये है विद फिल्टर, विद इंडक्टर फिल्टर। देखो जब हमने कोई इंडक्टर फिल्टर कनेक्ट नहीं किया, उस केस में वी हैव अ सिंपल फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट। जैसे ही हमने फिल्टर जो है उसको लगाया इन बिटवीन रेक्टिफायर एंड द लोड रेजिस्टेंस RL, तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें पल्सेशंस रिड्यूस हो गई। यहाँ पर देखो जो हमारी पल्सेशंस हैं वो अब रिड्यूस हो जाएंगी। यहाँ देखो अब हमारे पास क्या है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है द एवरेज वैल्यू और द डीसी वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, और इसके आसपास जो है ये हमारी अब पल्सेशंस हैं विद इंडक्टर फिल्टर। तो ये पल्सेशंस हमारी बहुत कम है। देखो मैं इसको इस तरीके से अगर एक्सप्लेन करूं, ये मेरी एवरेज वैल्यू है। अब जब मैंने फिल्टर अप्लाई किया मेरे पास सिर्फ इतनी ही पल्सेशंस हैं। पल्सेशंस जो है वो काफी हद तक रिड्यूस हो गई। दैट मीन्स जो एसी कंपोनेंट है वो काफी हद तक रिमूव हो गया, और जो हमारा आउटपुट है उसमें सिर्फ इतना ही वेरिएशन है डीसी के कंपैरिजन में। ये हमारी एवरेज वैल्यू है ना, तो उसमें बस अब इतना ही वेरिएशन प्रेजेंट है, इतना वेरिएशन प्रेजेंट नहीं है जो पहले था विदाउट इंडक्टर फिल्टर। तो ये जो मैंने स्क्रीन शेयर करी है इसकी ये तुम सर्किट डायग्राम भी बना सकते हो, और ये फिगर जो है वेव फॉर्म की जो आउटपुट रिप्रेजेंट कर रही है वो भी बना सकते हो। तो आई होप यहाँ से सबको क्लियर है द फिल्टरिंग एक्शन ऑफ इंडक्टर फिल्टर। अब इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी समझाऊंगी, जो इंडक्टर की हमारी बेसिक प्रॉपर्टी होती है। इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट इट डज नॉट अलाउ द इंस्टेंटेनियस चेंज इन करंट। दिस वी नो, हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था सबसे शुरू में, हमें पता है इंडक्टर जो है इट डज नॉट अलाउ द इंस्टेंटेनियस चेंज इन द करंट। इसका मतलब क्या है, जब करंट जो है किसी सर्किट से पास होगा एंड इफ अ करंट इज इंक्रीजिंग, देन इन दैट केस व्हाट हैपेंस, देखो यहाँ पर भी हमारे पास यही हो रहा है। यहाँ पर इन्होंने हाफ वेव रेक्टिफायर लिया है, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज है विदाउट फिल्टर, ये हमारी वोल्टेज है विद फिल्टर, ठीक है, और ये फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है, दिस इज विदाउट फिल्टर जो डॉटेड है, एंड दिस इज विद फिल्टर। ये मैंने अभी दिखाया था, इस तरीके का ही वेरिएशन आता है उसमें भी, ठीक है, ये मैंने जस्ट अभी बताया था, जो मैंने आउटपुट दिखाया था इस तरीके का वेरिएशन है। रिपल्स जो है हमारे वो काफी कम हो गए, ठीक है, एवरेज वैल्यू से ऊपर नीचे लाई कर रहे हैं पर काफी कम है। देखो इसमें क्या है, इंडक्टर फिल्टर में जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है, अब तो सारे ही पॉजिटिव हैं, जो फर्स्ट हाफ साइकिल है हमारा रेक्टिफायर आउटपुट का, जब ये हमारा पास होगा थ्रू द इंडक्टर, क्या होगा, देखो इनिशियली वोल्टेज और यू कैन से द करंट इज इंक्रीजिंग, एंड वी नो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर, जब करंट इंक्रीज होता है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक्ड विद द कॉइल दैट आल्सो इंक्रीजेस, व्हिच रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इट्स डायरेक्शन विल बी सच दैट इट अपोजेस द ग्रोथ ऑफ करंट। सो हमारा जो करंट होगा और जो वोल्टेज होगी, यू कैन से दैट विल इंक्रीज स्लोली। सो यहाँ पर जो है वी हैव अ स्लो इंक्रीज इन द waveform. You can see after this when current or voltage reaches to the maximum value, after this now the value is decreasing, and we know from the property of inductor, when the current or the voltage through the circuit decreases, then the magnetic flux linked with the coil also decreases. So
again an induced EMF is set up in the coil which now opposes the decay of current and tries to keep the current flowing. ठीक है, यही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी. सो इस वजह से करंट जो है वो एकदम से, या यहाँ पर वोल्टेज शो कर रखा है इन्होंने, वो एकदम से डिक्रीज नहीं हो रहा, वो हमारा धीरे धीरे डिक्रीज होगा. ठीक है, वो एकदम से डिक्रीज नहीं होगा, वो हमारा धीरे धीरे डिक्रीज होगा. ठीक है, ये हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं. सो this induced EMF which is now set up in the circuit, because of this induced EMF जो हमारा करंट है, it does not drop to zero does not drop to zero instantaneously on the decrease in the current that is we have supplied from the rectifier output. ठीक है, it will take some time. Here the time taken is this much time. तो ये हम ऑलरेडी जो है पहले पढ़ चुके हैं, उसी प्रॉपर्टी को यहाँ इंडक्टर फिल्टर में यूज किया जाता है. ठीक है, तो अब मैं इसको जो मैंने अभी बताया इसको मैं रीड कर देती हूँ. The filtering action of the inductor may also be viewed from another aspect. जो हमारी इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, जब करंट जो है हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है, इन दैट केस इंडक्टर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है और कंडक्टर और जो करंट है उसको इतनी जल्दी इंक्रीज होने नहीं देता. पर जैसे जैसे हमारा करंट जो है फिर अब डिक्रीज होना शुरू होता है, तो इंडक्टर जो है इट गिव्स बैक दैट एनर्जी टू द लोड. तो इस वजह से हमारा जो करंट है वो एकदम से डिक्रीज नहीं होता. सो अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर कंसीडर कर रही हूँ विदाउट फिल्टर, तो करंट जो है वो हमारा फ्लो होगा फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t/2, और t/2 टू t current remains 0. It then again flows from t to 3t/2 and it again remains 0 for the next half cycle. That means this is the behavior of current or voltage without filter. Current is increasing, then it is again 0, then it is again increasing, then it again 0. Now what happens, now we have introduced the inductor in the series. Now we have introduced the inductor in the series. Now what happens, because of this inductor जो growth of current है वो oppose होगी by the inductor in the first quarter cycle. That means from 0 to t/4. यहाँ 0 है, at this peak value our time is t/4. So from t going from 0 to t/4, इंडक्टर जो है it will oppose the growth of current. तो करंट जो है हमारा थोड़ा कम हो गया. Then during the next quarter cycle, that means from t/4 to t/2, जो हमारा करंट है it will tend to fall, but when the current tends to fall, the period of current conduction is increased. इसका मतलब क्या है, दोबारा ध्यान से पढ़ो. जब हम इंडक्टर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो क्या होता है, 0 से t/4 ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर साइकिल जो ग्रोथ ऑफ करंट है वो अपोज करता है इंडक्टर. तो करंट जो है वो हमारा थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, वो इतना इंक्रीज नहीं रहता. नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल फ्रॉम t/4 टू t/2, जो हमारा करंट है वो एकदम से डिक्रीज नहीं होता, वो उस डिक्रीज को रोकता है. ठीक है, सो द गैप of non-conduction from t is equal to t/2 to t is filled to some extent as shown in the figure. तो यहाँ पर जो हमारा एकदम जीरो करंट था वो कुछ हद तक हमारा कुछ एक्सटेंट तक फिल हो गया. अब इतने पोर्शन में करंट हमारा नॉन जीरो है. अगर अब हम हाफ वेव रेक्टिफायर की जगह फुल वेव रेक्टिफायर यूज करें तो उस केस में हमें और ज्यादा बेटर आउटपुट मिलेगा. कैसे, देखो पहले क्या हुआ, फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल, जो फर्स्ट क्वार्टर साइकिल था 0 से t/4, जब करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये करंट के इंक्रीज को रोक रहा है. तो अब हमारा ये वेव फॉर्म आया. अब t/4 के बाद करंट डिक्रीज हो रहा है, तो अब ये इसके डिक्रीज को रोकना शुरू करेगा. तो करंट जो है हमारा एकदम से डिक्रीज नहीं होगा. ठीक है, अब जैसे ही करंट हमारा 0 होने को हुआ,
फिर से जो है हमारे पास एक और वेव फॉर्म आ गया। अब यहाँ पर क्या है, करंट इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स अब ये करंट के इंक्रीज होने को रोकेगा, तो हमारे पास स्लाइटली डिप आएगा। अब फिर से जो है हमारे पास करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल आ गया। फिर ये डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, तो हमारे पास जो आउटपुट वेव फॉर्म आएगी अब वो हमारी इस तरीके से आएगी, ठीक है। और यहाँ पर और इसकी एवरेज वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ पे होगी। तो अब हमारे जो रिपल्स हैं above and below the average value वो हमारे कम हो गए, ठीक है। So we can say that most of the AC components जो है that is now removed from the rectifier output, and now the output that we have measured across the load resistance RL, it is having a very small AC component and a large amount of DC component. ये यहाँ पे लिखा हुआ है, in a full wave rectifier, since for each half cycle the period of conduction is beyond T by 2, the period of second rectifier will start before the current in the first has ceased. तो ये करंट को पूरा जीरो नहीं होने देगा, जैसे ही करंट जीरो होने को होगा दूसरी वेव जो है फिर से करंट को इंक्रीज कर देगी. So thus current through the inductor and the load resistance will not fall to zero at any instant. So we can say that pulsations in the output circuit, they are reduced to a very large extent. ठीक है, so this is how inductor filter works. Now इसमें एक चीज और है, what will be the ripple factor. ये हम हर filter circuit के लिए करेंगे, हर filter circuit के लिए हम ripple factor calculate करेंगे. हम देखेंगे कि अब जो हमारे पास आउटपुट आया आफ्टर पासिंग थ्रू द इंडक्टर फिल्टर, उस आउटपुट का हम रिपल फैक्टर निकालेंगे और हम देखेंगे उसका रिपल फैक्टर जो है कम हो जाएगा. रिपल फैक्टर जितना कम होगा दैट मींस पल्सेशंस जो है आउटपुट सर्किट में वो उतनी ही ज्यादा रिड्यूस हो गई. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए लिखेंगे, फिर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए. अब इसके लिए ना इस एक्सप्रेशन को तुम लोगों को याद करना पड़ेगा. ये एक्सप्रेशन आती है फ्रॉम द फूरियर एनालिसिस ऑफ वोल्टेज पल्सेस. ठीक है, इस एक्सप्रेशन का डेरिवेशन तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, इसका पूरा डेरिवेशन होता है. यू हैव टू डायरेक्टली क्रैम दिस एक्सप्रेशन. ये एक्सप्रेशन अगर तुम याद कर लोगे उसके बाद डेरिवेशन इज वेरी सिंपल. So according to Fourier analysis of voltage pulses of a half wave rectifier, the output voltage is given by this expression. This is the output voltage. V is equal to V naught upon pi into 1 minus 2 upon 3 cos 2 omega t minus 2 upon 15 cos 4 omega t. अब देखो हमने जब फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर की हम बात करते हैं, पहले जब हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था तो हमने उसकी एवरेज वैल्यू निकाली थी. एवरेज वैल्यू वोल्टेज की कितनी आई थी, वी नॉट अपॉन पाई. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टर्म है राइट हैंड साइड पे, दिस इज बेसिकली गिविंग IDC और VDC. VDC इज इक्वल टू V नॉट अपॉन पाई. फर्स्ट टर्म जो है हमारी 1 से मल्टीप्लाई होगी ना, सो दिस फर्स्ट टर्म इज गिविंग द एवरेज वैल्यू और द DC वैल्यू ऑफ वोल्टेज V नॉट अपॉन पाई एंड IDC इज I नॉट अपॉन पाई. और ये जो हमारी रिमेनिंग टर्म्स है सेकेंड थर्ड टर्म, इन सब में देखो कोसाइन का फंक्शन है. कोसाइन फंक्शन मतलब वेव पैटर्न है. वेव पैटर्न का मतलब क्या है, कोसाइन पैटर्न का मतलब क्या है, वेव पैटर्न. वेव पैटर्न का मतलब है AC कंपोनेंट. तो ये जो हमारी रिमेनिंग टर्म्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द AC हार्मोनिक्स. ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, फुल वेव रेक्टिफायर में जो हमारी एवरेज वैल्यू या DC वैल्यू होती है वोल्टेज की वो कितनी होती है, 2V नॉट अपॉन पाई. तो सिंपली इस एक्सप्रेशन में V नॉट अपॉन पाई को हम 2V नॉट अपॉन पाई से रिप्लेस कर देंगे, रेस्ट हमारा जो है वो सेम है. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये फर्स्ट कंपोनेंट है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट voltage, average or the DC value of the output voltage, that is VDC. और जो हमारा ये क्या है, this is the first AC component, this is the second AC component. तो जो first AC component है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा. ठीक है, और जो हमारा so from this we can say that the frequency of first AC component that is 2 omega is twice
the frequency of AC supply from the transformer. ट्रांसफॉर्मर से जो हमारी AC सप्लाई थी वो क्या थी, V is equal to V naught sin ओमेगा t. तो वहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी थी, ओमेगा. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट AC कंपोनेंट की, अब वो ट्वाइस हो गई ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर. ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है फ्रॉम द रेक्टिफायर. ये हमारा V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी जो है, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है जो हमने अप्लाई करी थी ट्रांसफॉर्मर में. उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी. जो आउटपुट वोल्टेज है उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट AC कंपोनेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हो जाती है 2 ओमेगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो है we'll retain only up to the first order term, or you can say we'll retain only up to the first AC component term and we'll ignore this term. So we'll retain only up to the first two terms. Here this is representing the DC component, this is representing the first AC component, obviously multiplying with 2V naught upon 5. So in a full wave rectifier we are considering only the first two terms. I hope सबको ये clear है. This is the expression for a half wave rectifier. This is for a full wave rectifier. The first term is representing the average value or the DC value, which is 2V naught upon pi, and the second term is representing the first AC component, which is given by 2V naught upon pi into 2 upon 3 cos 2 omega t, that is 4V naught upon 3 pi into cos 2 omega t. ठीक है, तो VDC हमारे पास कितना है, 2V naught upon pi. तो हमारा IDC कितना हो गया, IDC हम मेजर कहाँ पे कर रहे हैं करंट, वी आर मेजरिंग अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL. तो IDC क्या हो गया, VDC upon RL, and VDC is 2V naught upon pi. So IDC is 2V naught upon pi RL. अगर हम कहते हैं the resistance offered by the inductor is neglected, here we are considering only the resistance across the load resistance RL. If we say that inductor is offering negligible resistance or the zero resistance to the DC, XL हमारा होता है ओमेगा L. So it is offering zero or very small negligible resistance to DC. So we can say that R is simply RL. Now the peak value of AC voltage. Peak value AC voltage की यहाँ पे कितनी आई हमारी, ये peak value है ना, ये एम्पलीट्यूड है ना, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. अगर हम लेते हैं तो V नॉट हमारा एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, और साइन ओमेगा टी से हमें फेस पता चलता है, V नॉट से एम्पलीट्यूड. तो इस टर्म के लिए फर्स्ट AC कंपोनेंट से हमें जो AC है उसकी पीक वैल्यू मिल रही है, दिस इज 4V नॉट अपॉन 3 पाई. So we have obtained the peak value of AC voltage. So what will be the RMS value of AC voltage? RMS value जो है हमने calculate करी थी, that comes out to be the peak value divided by √2 for a full wave rectifier. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा V naught, यहाँ पे हमारा peak value कितना है, यहाँ पे peak value is 4V naught upon 3 pi. ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4V naught upon 3 pi divided by √2. देखो दोबारा समझने की कोशिश करो, मैं दोबारा एक बार बताती हूँ, इस एक्सप्रेशन को तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा. ठीक है, सो हियर वी आर ओनली कंसीडरिंग द फर्स्ट टू टर्म्स. तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई. अब हमें क्या करना है, रिपल फैक्टर निकालना है. रिपल फैक्टर क्या होता है, उसका फॉर्मूला, रिपल फैक्टर का फॉर्मूला होता है IRMS अपॉन IDC. ठीक है, जो AC कंपोनेंट है उसमें कितना, उसकी RMS वैल्यू ऑफ द AC कंपोनेंट ऑफ द वेव डिवाइडेड बाय द DC कंपोनेंट. इसको IRMS अपॉन IDC लिख लो, या हमने पहले इसको I प्राइम RMS अपॉन IDC से डिनोट किया था. तो यहाँ पे ये जो I प्राइम RMS है, दिस इज दैट IRMS ओनली. ठीक है, हम इसको ऐसे ही लेंगे. नाउ अब हमें IRMS और IDC निकालना है. IDC हमारा कितना होता है, IDC हमारा हमें पता है दैट इज इक्वल टू VDC अपॉन RL. VDC हमारा कितना होगा, यहाँ से VDC इज 2V नॉट अपॉन पाई. ये हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमें IDC मिल गया. अब रिपल फैक्टर निकालने के लिए वी नीड IRMS और VRMS. ठीक है,
अब VRMS हम कैसे निकालेंगे? VRMS क्या होता है हमारा? वो होता है जब हम पीक वैल्यू, जब हमने फुल वेव रेक्टिफायर करा था तो वो हमारा आया था V0 अपॉन √2। V0 वहां पर पीक वैल्यू थी। यहाँ पर हमारी पीक वैल्यू जो है वो कितनी है हमारी AC वोल्टेज की? 4V0 अपॉन 3 पाई। तो हमारी यहाँ पे RMS वैल्यू आ गई 4V0 अपॉन 3 पाई इंटू 1 अपॉन √2। IRMS हमारा कितना हो गया? VRMS अपॉन दी रेजिस्टेंस। अब हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी होगी? जो हमारा इंडक्टर है वो ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस टू द AC कंपोनेंट, तो यहाँ पर अब हम इंडक्टर इम्पिडेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, अब हम ओमेगा एल को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और हमने ये चीज ऑलरेडी निकाली थी, इम्पिडेंस क्या होती है LR सर्किट की? वो होती है अंडर रूट ऑफ RL स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर होता है। बट हमारा AC के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 ओमेगा। हमने यहाँ पे बताया था AC कंपोनेंट के केस में जो हमारी फ्रीक्वेंसी है दैट इज 2 ओमेगा। तो यहाँ पे हम ओमेगा एल नहीं लेंगे, वी विल राइट 2 ओमेगा L। तो यहाँ से हमें IRMS मिल गया आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ VRMS। 2 omega L is the impedance offered by the inductance coil, as 2 omega is the frequency for the second harmonic or the first AC component. Now we'll simply use the expression of the ripple factor that is equal to IRMS upon IDC. Now substitute the value of IRMS. This is 4V0 upon 3 pi √2 divided by under root RL square plus 4 omega square L square divided by IDC, which is 2V0 upon pi RL। देखो यहाँ पर ना अब एक चीज का और ध्यान रखना, हमने जब फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर करा था वहां पे मैंने रिपल फैक्टर जो है उसकी एक्सप्रेशन लिखी थी I प्राइम RMS अपॉन IDC। ठीक है, उसको यहाँ पे कंफ्यूज मत करना। ये जो IRMS है हमारा, ये हमारा I प्राइम RMS ही है। यहाँ पे हम जो RMS वैल्यू निकाल रहे हैं वो AC कंपोनेंट की निकाल रहे हैं, ये हमारा AC कंपोनेंट है। ठीक है, हम एवरेज वैल्यू V0 नहीं ले रहे, हम एवरेज वैल्यू ले रहे हैं 4V0 अपॉन 3 पाई। जो हमारी एवरेज, जो हमारी, सॉरी इसको एवरेज वैल्यू नहीं कहेंगे, आई एम वेरी सॉरी, अगर मैंने पहले भी ये चीज रिपीट करी है। हमारा IDC होता है 2V0 अपॉन पाई, where V0 is the peak value। मैंने शायद इसको एवरेज वैल्यू रिपीट किया है, पहले इसको करेक्ट करो। VDC is the average value that is equal to 2V0 upon pi, where V0 is the peak value of the voltage। ठीक है, सिमिलरली VRMS हमारा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आया था V0 अपॉन √2, जहां पर V0 था पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। यहाँ पर हम लेंगे पीक वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज। पीक वैल्यू हमारी AC वोल्टेज की है 4V0 अपॉन 3 पाई, जिसको हमने यहाँ पुट किया। हमें पता है RMS वैल्यू होता है द पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। पीक वैल्यू हमारी AC कंपोनेंट की है 4V0 अपॉन 3 पाई। So RMS value of the AC component will become V0 into 4 upon 3 pi into 1 upon √2. So what will be the RMS value of the current of the AC component? That is IRMS will be VRMS upon the impedance, and the impedance is under root RL square plus 4 omega square L square. Since here the frequency is 2 omega, ठीक है, यहाँ पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो 2 ओमेगा है, ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई फ्रॉम द ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर जो हमारा IRMS है, दिस इज ओनली द I प्राइम RMS जो हमने फुल वेव रेक्टिफायर में करा था, द RMS वैल्यू ऑफ द AC कंपोनेंट। हम सिर्फ AC कंपोनेंट की RMS वैल्यू निकाल रहे हैं। सो दिस IRMS इज सेम एज दैट ऑफ I प्राइम RMS। ठीक है, इसको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना। मैं फिर से बता देती हूँ, एवरेज वैल्यू होता है द पीक वैल्यू इंटू 2 अपॉन पाई, दैट मीन्स 2 इंटू पीक वैल्यू अपॉन पाई, जो हमारी एवरेज वैल्यू होता है द DC वैल्यू।
और जो हमारी RMS वैल्यू होती है दैट इज द पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। तो अगर हम AC कंपोनेंट की RMS वैल्यू निकाल रहे हैं, सो वी विल कंसीडर द पीक वैल्यू ऑफ द AC कंपोनेंट व्हिच इज हियर 4V0/3 पाई। आई होप अब यहाँ पे सबको क्लियर है। बीच में मुझे लगता है मैंने शायद पीक वैल्यू को एवरेज बोल दिया था, ध्यान रखना। एवरेज वैल्यू इज IDC एंड पीक वैल्यू इज द जो यहाँ पर हमारी साइन या यहाँ पर हमारी कोसाइन के साथ टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, दैट इज द पीक वैल्यू। V is equal to V0 sin omega t में V0 represents the peak value of the voltage। आई होप अब सबको क्लियर होगा। अब इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे। पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट होगा, एक 2 हमारा कैंसिल आउट होगा, V0 कैंसिल आउट होगा एंड वील गेट 2/3√2 इनटू ये RL हमारा न्यूमरेटर में जाएगा, RL/√ RL स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। Thus ripple factor for a full wave rectifier is R is equal to, or you can say that ripple factor of a full wave rectifier after passing through the inductor filter जो है वो हमारा अब क्या होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो रिपल फैक्टर फुल वेव रेक्टिफायर का क्या आ गया, वो हमारा ये आ गया आफ्टर पासिंग थ्रू द इंडक्टर filter, that is 2/3√2 into RL/√RL square plus 4 omega square L square। now यहाँ पर जो है अगर हम कहते हैं इसको, if 4 omega square L square upon RL square is very very greater than 1, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है दोनों को RL से डिवाइड कर दूं तो मेरा ये क्या हो जाएगा 2/3√2 into 1/√1 plus this term if I divide both numerator and denominator by RL। ठीक है, तो अब इसमें हम कहते हैं इसमें if this term that is 4 omega square L square upon RL square is very very greater than 1, then in that case I can neglect 1 in comparison to this term since this is very large than 1, so then the ripple factor reduces to RL upon ये एक 2 से एक √2 कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो we'll get RL upon, अच्छा इन्होंने इससे कैंसिल आउट नहीं किया, यहाँ पर हमारा आ गया 4 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन RL स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब हम जब स्क्वायर रूट हटाएंगे हमारे पास आ जाएगा RL/3√2 ओमेगा L। यहाँ पर तुम लोग को कंफ्यूज नहीं होना, देखो रिपल फैक्टर की मैं यहाँ एक्सप्रेशन लिख देती हूँ। इफ आई डिवाइड both numerator and denominator by RL, then the ripple factor becomes 2/3√2 into 1/√1 plus 4 omega square L square upon RL square। अब इसमें मैं कहती हूँ if 4 omega square L square upon RL square is very very greater than 1, then I can neglect 1 in comparison to this term। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा RL square है ये ऊपर आ जाएगा, so it will become RL upon 2 omega L। 2 से एक 2 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा एंड वील गेट RL/3√2 ओमेगा L। मतलब ये एक्सप्रेशन सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रिपल फैक्टर फॉर द इंडक्टर फिल्टर। ठीक है, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। आई होप यहाँ पर सबको क्लियर है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम जो रेक्टिफायर आउटपुट में जो फ्लक्चुएशन या रिपल्स प्रेजेंट है या जो अनडिजायर्ड एसी कंपोनेंट प्रेजेंट है उसको फिल्टर की हेल्प से किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए आज हमने फर्स्ट फिल्टर देखा विच इज द इंडक्टर फिल्टर। इंडक्टर फिल्टर में हमने देखा कि अगर हम एक इंडक्टर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं इन बिटवीन द रेक्टिफायर आउटपुट एंड द लोड रेजिस्टर,
तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर दैट इट अलाउज डीसी टू पास थ्रू एंड ब्लॉक्स एसी, we get the we get this type of output with filter. In this output, what we have seen that now the pulsations or the ripples, they are reduced to a very large extent. ठीक है, अगर ये मेरी एवरेज वैल्यू है आउटपुट वोल्टेज की, तो अब मेरे पास जो pulsations हैं they are very close to the average value. So that means pulsations जो हैं they are reduced to a large extent, or we can say that large amount of pulsations or the AC component have been removed from the rectifier output. ठीक है, तो this is how inductor filter works. फिर हमने उसका रिपल फैक्टर कैलकुलेट किया, that what will be the ripple factor for a half wave rectifier if we introduce the inductor filter within the circuit. तो उसके लिए इस एक्सप्रेशन को तुम्हें याद रखना है. इस एक्सप्रेशन को हमने रिटेन किया only up to the first two terms, and here we have seen that the first term is representing the average value and the second term is representing the AC component present in the output. So the ripple factor, we know it is given by the I prime RMS upon IDC, where I prime RMS is the RMS value of the current of the AC component of the wave, and IDC is the average value of the DC component of the wave. तो IDC हमने निकाला, VDC हमारा यहाँ से 2V0 upon pi है, तो IDC हमारा हो गया 2V0 upon pi into RL. फिर हमने निकालना था IRMS. Here it is I prime RMS is IRMS only. IRMS निकालने के लिए we should know VRMS. We know from RL circuit हमने देखा है IRMS is equal to VRMS upon under root of R square plus XL square. Here XL is 2 omega L, not omega L. Since here now the frequency of first AC component is twice the frequency of AC supply from the transformer. So here XL becomes 2 omega L. So we have impedance as under root RL square plus 4 omega square L square. So now to find IRMS, what we need? VRMS. VRMS, we know it is 1 upon root 2 into the peak value. So here we have seen that peak value of the AC component is 4V0 upon 3 pi. So VRMS will be 1 by root 2 into 4V0 upon 3 pi. So if we get VRMS, we can get IRMS. So now we know IRMS and IDC. So we can simply substitute their values in this expression and we can get the value of ripple factor. So here we have obtained that this is the expression of ripple factor of a full wave rectifier with inductor filter. And under this condition, if we can say that XL square is very greater than RL square, or XL is very greater than RL, in that case the ripple factor reduces to this expression. Okay, so this is about inductor filter. In the next class we will study shunt capacitor filter and the L type filter. तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो रिपल हमने इंडक्टर फिल्टर में क्या देखा, रिपल फैक्टर जो है हमारा, और यू कैन से दैट इंडक्टर फिल्टर जो है इट इज मोर इफेक्टिव व्हेन RL इज स्मॉल. ये देखो, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RL. तो अगर हम लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम लेंगे तो हमारा रिपल फैक्टर जो है कम होगा. दैट मीन्स हमारे पल्सेशंस और कम होंगे इन द आउटपुट with filter. So from this we can say that this equation 6.55 implies that inductor filter is more effective when the load resistance RL is small. Okay, so in the next class we will start with shunt capacitor filter.